man whom the Lord doeth choose, he shall be holy. Ye take too much upon you, ye sons of Levi. And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi, seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto them. And he hath brought thee near to him, and all thy brethren the sons of Levi with thee. And seek ye the priesthood also, for which cause both you and all thy company are gathered together against the Lord. And what is Aaron, that ye murmur against him? And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, which said, We will not come up. Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou make thyself altogether a prince over us? Moreover, thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards. Wilt thou put out the eyes of these men? We will not come up. And Moses was very wroth, and said unto the Lord, Respect not thou their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou and they and Aaron tomorrow, and take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer, 250 censers, thou also and Aaron each of you his censer. And they took every man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with Moses and Aaron. And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation, and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin? And wilt thou be wroth with all the congregation? And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram. And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of this wicked man, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. So they gat up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram. On every side of Dathan and Abiram came out, and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little children. And Moses said, Hereby ye shall know that the Lord hath sent me to do all these works, for I have not done them of mine own mind. If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them, and the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods, they and all that appertained to them, went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. And all Israel that were round about them fled at the cry.
of them. For they said, Lest the earth swallow us up also. And there came out of fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Eleazar the son of Aaron the priest, that he take up the censers out of the burning, and scatter thou the fire yonder, for they are hallowed, the censers of the sinners against their own souls. Let them make them broad plates for a covering of the altar, for they offered them before the Lord. Therefore they are hallowed, and they shall be a sign unto the children of Israel. And Eleazar the priest took the brazen censers wherewith they that were burnt had offered, and they were made broad plates for a covering of the altar, to be a memorial unto the children of Israel, that no stranger which is not of the seed of Aaron come near to offer incense before the Lord, that he be not as Korah and as his company, as the Lord said to him by the hand of Moses. But on the morrow all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the Lord. And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, and they looked toward the tabernacle of the congregation, and behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation. And the Lord spake unto Moses, saying, Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces. And Moses said unto Aaron, Take a censer, and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them, for there is wrath gone out from the Lord, the plague is begun. And Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the congregation, and behold, the plague was begun among the people. And he put on incense, and made an atonement for the people. And he stood between the dead and the living, and the plague was stayed. Now they that died in the plague were 14,700, beside them that died about the matter of Korah. And Aaron returned unto Moses unto the door of the tabernacle of the congregation, and the plague was stayed. Chapter 17. Aaron's rod only flourisheth, it is laid up for a memorial against the rebels. First verse. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and take of every one of them a rod according to the house of their fathers, of all their princes according to the house of their fathers, 12 rods. Write thou every man's name upon his rod, and thou shalt write Aaron's name upon the rod of Levi. For one rod shall be for the head of the house of their fathers, and thou shalt lay them up in the tabernacle of the congregation before the testimony, where I will meet with you. And it shall come to pass that the man's rod whom I shall choose shall blossom, and I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you. And Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod apiece, for each prince one according to their fathers' houses, even 12 rods, and the rod of Aaron was among their rods. And Moses laid up the rods before the Lord in the tabernacle of witness. And it came to pass that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and bloomed blossoms, and yielded almonds. And Moses brought out all the rods from before the Lord unto all the children of Israel, and they looked and
they looked and took every man his rod. And the Lord said unto Moses, Bring Aaron's rod again before the testimony to be kept for a token against the rebels, and thou shalt quite take away their murmurings from me, that they die not. And Moses did so as the Lord commanded him. So did he. And the children of Israel spake unto Moses, saying, Behold, we die, we perish, we all perish. Whosoever cometh anything near unto the tabernacle of the Lord shall die, shall we be consumed with dying. गिनती की पुस्तक 16 अध्याय 17 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोरह, दातान और अबीराम का बलवा। 16 अध्याय पहले वचन से। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रख कर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया। फिर भी तुम याजक पद की भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपने सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनाकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुँचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की और दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली के साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुँह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा?
यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हटे जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के कोरह दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पलियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जाति जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, वे उनको चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। धूपदान 36 वचन से आगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजार से कहे कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही चितरा दे, क्योंकि वे पवित्र है। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था। इससे वे पवित्र है। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलियाजार याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के गढ़ने के लिए बनवा दिए कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। इसराइलियों में महामारी। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे।
तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। हारून की छड़ी में कलियां। 17 अध्याय पहले वचन से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले। उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दो। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियों फूट निकलेगी। और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियाँ हुई और उनके छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तो उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? थैंक यू जीसस। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 24 चैप्टर 10 वर्स से 21 वर्स, सैम्स 57 वर्स से 57 चैप्टर 58 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 24 चैप्टर 10 वर्स से 21 वर्स, सैम्स 57 चैप्टर 58 चैप्टर। हम पढ़ेंगे अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे। और जब हम इसे पर्सनल टाइम में पढ़ रहे होते तो हम परमेश्वर के वचन सीख रहे होते हैं और उसके अनुसार हमारे अंदर सुधार, बदलाव, जो भी परमेश्वर चाहता है उस उन्नति को ला सकता है और हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसी कुव्वत आने के लिए हम पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय में पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं सभी ने ऐसे पढ़ना है, लेकिन जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर का परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और हम उसको इजाज़त दे रहे हैं हमारे जीवन को बदलने का। आप जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको समझाना है, सिखाना है इस बाइबल रीडिंग के वक्त में। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिर टाइम फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डर लेना इसमें लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।